Now, good morning once again, and we are going to discuss what happens to an acid or a base in a water solution. I hope the previous topic is clear to you. Okay, that acids conduct electricity in aqueous solution. When they are dissolved in water, they conduct electricity. Okay, that is, they produce H plus ions in water. Now, the next activity is actually 2.9. Okay, with the help of this, we will come to know few points also. Okay, so let us first of all understand what is there in this activity. We have to take NaCl, sodium chloride, and let me see the amount. 1 gram sodium chloride will be taken in a test tube. Okay, and with the help of a conical flask, okay, we have to add sulfuric acid H2SO4, which is concentrated. Okay, and when we will you have to add concentrated sulfuric acid to NaCl. First of all, I want to show you equation. Okay, what will happen in this reaction? See, NaCl plus H2SO4. Okay, I am writing here. Okay, इसका मतलब ऐसे ही, ऐसे आप कर दें एरो, या फिर ऐसे नीचे मैं शो कर रही हूँ. ओके, तो ये बच्चों रिएक्शन क्या होगा? NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, मैं भी लिख दूंगी, एंड हाइड्रोजन क्लोराइड और HCl. ओके, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट will be formed, and this is HCl gas. Okay, so what you will see, जब आपने H2SO4 ऐड करेंगे तो you will find bubbles coming out. उसी में आपको क्या करना है? You have to put a cork, okay, and pass a delivery tube, right? अब हमारे पास सेम वही चीज़ें हैं. Okay, ये NaCl, right? You added H2SO4, यहाँ पे शो किया जा रहा है. You added H2, concentrated H2SO4 to it, and you will find bubbles of hydrogen chloride will start coming out. Okay, and for testing the nature of this gas HCl, you want to be very clear about this, कि HCl is going to show its acidic nature in case of dry litmus paper or not. ये आप देखना चाहते हैं. तो हमारे पास अभी क्या है? ये हमारे पास अभी ड्राई लिटमस पेपर है, completely dry. Okay, when you will pass HCl gas through the delivery tube to this dry litmus paper, it will not turn red. ये रेड नहीं होगा. ओके, ये रेड नहीं होने वाला. लेकिन अगर आप इसमें मॉइस्ट लिटमस पेपर, but if you will pass moist dry HCl gas to moist litmus paper, what will happen? The blue litmus paper will turn red. कैसे हो जाएगा? जहाँ भी गैस स्ट्राइक करेगी it will turn red, showing that it shows its acidic nature. HCl or any acid shows its acidic nature in presence of water. Okay, now next thing, if the weather is very humid, अगर यही एक्सपेरिमेंट हम अगर लैब में कर रहे हैं और बहुत ही ह्यूमिड वेदर है, तो उसमें आप देखेंगे रिजल्ट्स गलत भी हो सकते हैं. ड्राई लिटमस पेपर जो आपने लिया वो भी हो सकता है, उसमें भी कलर आप देख लें कि इट विल टर्न रेड. तो हमें फिर समझ में नहीं आता है कि गलती कहाँ हुई, हमने क्या पढ़ा था, क्या गलत इसमें हो गया. तो उस केस में हम क्या करते हैं? हम HCl, अंदर तो मॉइस्चर हो सकता है ना, देर आर लॉट्स ऑफ चांसेस के जो है इसमें मॉइस्चर अंदर भी हो, तो उसको हम कैल्शियम क्लोराइड गार्ड ट्यूब में ऐसे ऐड कर यूज़ किया जाता है. और कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या होता है? टू ड्राई द गैस. ये जो है, जो इसको वेट नहीं होने देना, इसको मॉइस्चर इसका सारा ख़त्म कर देना, तो ये कैल्शियम क्लोराइड का काम है. ठीक है, तो जब बिल्कुल ड्राई फॉर्म में HCl पास होगी तो ऑब्वियसली इट विल गिव यू द करेक्ट रिजल्ट. ये समझ में आ गया? तो ह्यूमिड वेदर में हम क्या ले सकते हैं? कैल्शियम क्लोराइड गार्ड ट्यूब में ले सकते हैं ह्यूमिड वेदर में. ओके,
in humid weather. So one more thing is taken, which is calcium chloride humid weather में, in order to obtain correct results. Okay, ये आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, सेम बिल्कुल चीज़ दी हुई है. अब बेस का भी हम देख लेते हैं साइड बाय साइड, और थोड़ा इसके साथ साथ हम स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स और बेसिस भी डिस्कस कर लेंगे. नाउ अगेन आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. In part 5 I have explained that how H plus ions, okay, H plus and Cl minus separates, okay, in presence of water and show its acidic nature. ओके. नाउ बेसिस का क्या होता है, अगर बेसिस को आप डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो बेस सपोज करिए आपने NaOH है, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, राइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपने सॉलिड फॉर्म में ली और आपने उसमें क्या ऐड किया, H2O, आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं. तो अगेन वाटर फिर क्या होगा, इसमें भी ऑब्वियसली बॉन्ड जो इसके बीच में होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में, उसको वीक कर देगा, और क्या प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल जैसे लास्ट वीडियो भी मैंने पार्ट 5 में आपको एक्सप्लेन किया वैसे ही होगा. Na प्लस एक्वस प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, अगेन एक्वस, ये माइनस है, नेगेटिव. ओके. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. ओके. ये किस में डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट्स इनटू K प्लस एंड OH माइनस आइंस. ओके. K प्लस एक्वस वही लिखेंगे, वैसे ही लिखेंगे हम, एंड हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस, राइट. सिमिलरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, इट विल अगेन डिसोसिएट इनटू व्हाट, मैग्नीशियम आयंस, Mg2 पॉजिटिव लाइक दिस, एक्वस प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयन, ऐसे करके. मैकेनिज्म आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आई थिंक आ ही गया होगा इस लेवल पे कि किस तरह से डिसोसिएशन आयंस का हो रहा है. ठीक है. इसमें भी Na प्लस में एक्वस कैसे, वैसे ही वाटर जो H2O आपने देखा है, आपको ऐसे बताया था मैंने, O नेगेटिव ऐसे, H पे प्लस, ऐसा स्ट्रक्चर होता है. ओके. यहाँ पे नेगेटिव पार्ट ऐसे ही सोडियम के साथ अटैच कर जाएगा. ये Na प्लस है आपका, और यहाँ पे क्या है, हमारा ऑक्सीजन आएगा, राइट. यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव. आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको. माइनस प्लस प्लस, ये थोड़ा प्लस ही बड़ा हो गया, ऑक्सीजन बड़ा है जब भी इसका. ठीक है. ये क्लियर है या नहीं है, दिख रहा है ये सब ऐसे. ओके. ये वाटर मॉलिक्यूल है हमारा, which will surround Na plus ion. Similarly ऐसे ही हाइड्रोक्साइड आयन को भी इससे सेम वो होगा. तो आप अगर ये देखेंगे, इसमें हमें क्या कॉमन फैक्टर दिख रहा है, जैसे हमें एसिड्स में H प्लस आयंस हर केस में दिखे थे रिलीज होते हुए, है ना. इसमें भी हमने डिफरेंट बेसिस लिए, NaOH, KOH, MgOH ट्वाइस, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बट यू विल सी हाइड्रोक्साइड कॉमन इन ऑल केसेस. ओके. तो बेसिस का भी हमें पता चल गया. बेसिस कंटेन हाइड्रोक्साइड आयंस विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर. समझ पा रहे हैं. तो बेसिस क्या होते हैं, वो होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयंस वाटर में, जब उसे वाटर में आप डिसॉल्व करें बेसिस को, तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करें. ओके. नाउ नेक्स्ट एक छोटा सा डिफरेंस है बेसिस और एल्कलीज का. नाउ बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर and give hydroxide ions in water are called alkalis. Okay, ये आपको समझ में आया. there is a difference, a slight difference between bases and alkalis. Bases which are soluble in water, okay, condition is what, they should be soluble in water. Obviously when they are soluble in water they give hydroxide ions in water and then they are called alkalis. ओके. ये हमने समझ लिया. अब नेक्स्ट चीज़ जो है, जैसे C2H5OH का आपको एग्जाम्पल उसमें दिया था हमने जब एक्टिविटी 2.8 डिस्कस करी थी. डू यू रिमेंबर C2H5OH? उसमें हमें H दिख रहा था कि हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है ना, जगह जगह हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, बट इट वॉज नॉट कंसिडर्ड एसिड बिकॉज ऑफ द रीजन कि इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ओके. इसीलिए अगर आप ये देखें, इसमें OH आयन भी हमें हाइड्रोक्सी पार्ट दिख रहा है, OH दिख रहा है, बट जब आप C2H5OH को, एथेनॉल को वाटर में डिसॉल्व करते हैं,
ओके, वाटर ऐड करती हूँ इसमें, तो इट डज नॉट डिसोसिएट टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन, ये OH माइनस आइंस नहीं देता है, दैट इज वाई इट इज नॉट अ बेस। ये आपको याद रखना है कि इथेनॉल इज नॉट अ बेस। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू मेक क्लियर टू यू इस के हमने आपको जब मैंने पार्ट 4 आई थिंक पार्ट 3 और 4 में आपको मैंने समझाया था कि मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस। क्या बोला था मैंने आपसे? मेटल हाइड्रोक्साइड्स। ओके, जब मैं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ आपको वाटर का दिखाया था कि वाटर के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ओके, तो मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस। सिमिलरली मेटल ऑक्साइड्स दे आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों? तो हम ये बोल सकते हैं दैट बेसिस आर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स। ओके, वन थिंग, लेकिन अगर आप एक एक्सेप्शन है, अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड लें NH4OH, इसमें तो मेटेलिक पार्ट नहीं है, ये तो नॉन मेटेलिक पार्ट है NH4 ओके OH, ऑल्दो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये याद रखना है आपको। इसमें मेटल वाला आपको कुछ भी वो नहीं दिख रहा, ना नाइट्रोजन मेटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। ओके, तो इसमें मेटल का तो कोई पार्ट नहीं है, जैसे NaOH आप लिखते हैं। ओके, NaOH में N इज अ मेटेलिक पार्ट, ओके, अटैच्ड विद हाइड्रोक्साइड ग्रुप, ओके, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये आप देखेंगे NaOH क्या हो गया? ये बेस है। ओके, मेटल हाइड्रोक्साइड हो गया ये। लेकिन इस केस में ये भी क्या है? एक एक्सेप्शन है, दिस इज ऑल्सो अ बेस। और ये क्यों बेस होता है? क्योंकि जब ये देखिए, अगर आप किसी एसिड के साथ इसको रिएक्ट करा रहे हैं तो ये क्या देगा आपको? बेस रिएक्ट्स विद सॉल्ट, सॉरी, बेसिस रिएक्ट विद एसिड गिव व्हाट? सॉल्ट प्लस वाटर, हमने पढ़ा था। तो इस केस में भी ये क्या देगा? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड विच इज अ सॉल्ट एंड वाटर। इतना समझ में आया? इसलिए ये क्योंकि सॉल्ट दे रहा है प्लस वाटर, तो ये भी हमारा क्या है? ये बेस ही है। ओके, बेस प्लस एसिड, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर।